Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our third chapter from our textbook in English, First Flight. The name of the chapter is Two Stories About Flying. उड़ान के बारे में दो कहानियाँ. We have two parts or two stories in this chapter. First, his first flight by Liam O'Flaherty, and the second one, Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. Today we are going to study its first part, his first flight, written by Liam O'Flaherty. This is an imaginary story of a young seagull. यह एक काल्पनिक कहानी है एक युवा सीगल की. The story conveys the message that one learns by taking courage and not by sitting idle. ये कहानी हमें संदेश देती है कि हम हिम्मत से कुछ सीखते हैं, न कि खाली बैठने से. So let's start the story for our chapter, his first flight. The young seagull was alone on his ledge. जो युवा सीगल है, young seagull was alone, अकेला था on his ledge. Ledge means a part of a rock that is jutting out. एक ऐसा rock का एक ऐसा हिस्सा, चट्टान का एक ऐसा हिस्सा जो बाहर की ओर निकला होता है. शिखा फलक हम कह सकते हैं हिंदी में. शिखा फलक कहलाता है ये. यंग सीगल जो था वो शिखा फलक पर अकेला था, मीन्स लेज पर अकेला था. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही अपनी उड़ान उड़ चुके थे. He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने से डर रहा था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow किसी तरह से when he had taken a little run, जब उसने एक थोड़ी सी दौड़ लगाई forward to the brink of the ledge, उस ledge के किनारे की ओर, brink किनारा, and attempted, उसने कोशिश की to flap his wings, अपने wings को फड़फड़ाने की, he became afraid, वो डर गया. The great expanse of sea stretched down beneath. Expanse विस्तार, फैलाव. नीचे beneath, under, below, नीचे एक समुद्र का बड़ा फैलाव था. And it was such a long way down, miles down, और नीचे की ओर काफ़ी गहरा था, miles down, मीलों नीचे. He felt certain that his wings would never spot him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. He felt certain, उसने निश्चित रूप से महसूस किया that कि his wings, उसके पंख would never spot him, उसे कभी सहारा नहीं देंगे. So he bent his head, उसने अपना सिर झुकाया, and ran away back, और वापस दौड़ गया to the little hole, उस छोटे से छिद्र की ओर, under the ledge, जो ठीक ledge के नीचे था, where, जहाँ he slept at night, वो रात को सोया था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Even when, यहाँ तक कि जब each of his brothers and his little sister, जब उसके भाई और उसकी छोटी सिस्टर, whose wings, जिनके पंख were far shorter than his own, उसके अपने पंखों से काफ़ी छोटे थे, ran to the brink, वो किनारे की ओर दौड़े, flapped their wings, उन्हें अपने पंखों को फड़फड़ाया, and flew away, और उड़ गए. He failed, वह असफल रहा, to muster up courage. Muster means gather,
इकट्ठा करना, अपने करेज को, साहस को इकट्ठे करने में, यानी अपने साहस को जोड़ने में वो असफल रहा। टू टेक दैट प्लंज, क्या करने में? टू टेक दैट प्लंज, वो उड़ान भरने में। प्लंज डाइव, वो डाइव करने में, उड़ान भरने में। डाइव वैसे गोता, प्लंज गोता लगाने में, नीचे की ओर आने में। दैट प्लंज विच अपियर टू हिम, जो कि उसे काफ़ी डेस्परेट, हताश लग रही थी, निराशाजनक लग रही थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके फादर और मदर, पेरेंट्स, हैड कम अराउंड, उसकी ओर आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, वो उसे बड़ी तीव्र स्वर में बुला रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स रिब्यूकिंग, डांटना, उसे डांट रहे थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, उसे थ्रेट कर रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व, के वो उसे धमका रहे थे कि वो उसे भूखा रखेंगे ऑन हिज लेज, अपने उस लेज पर, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वह उड़ेगा नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए भी वह हिल नहीं सका। दैट वॉज 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले था। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, यानी ये बातें सभी जो थी वो 24 घंटे पहले थी, उसके बाद से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, पहले दिन, पूरा दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने अपने पेरेंट्स को देखा था जो उसके ब्रदर्स और उसकी सिस्टर के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम, उनके पेरेंट्स उन्हें परफेक्ट, निपुण बना रहे थे। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्किम, कि किस प्रकार स्किम करना है। मीन्स स्किम कैसे लाइटली उड़ना है, हवा में होना है, स्किम करना है। स्किम द वेव्स, वेव्स को छू कर निकल जाना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार फिश के लिए डाइव करना है, गोता लगाना है। He had in fact seen his older brother catch the first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. In fact, वास्तव में he had seen his older brother, उसने अपने बड़े भाई को देखा, catch his first herring, herring sea fish, मछली को पकड़ते, उसकी पहली मछली को पकड़ते हुए, and devour it, उसे खाते हुए, devour, to taste or to eat. Standing on a rock, रॉक पर खड़े हुए। while his parents circled around raising a proud cackle, जबकि उसके पेरेंट्स circled around, उसके चारों ओर उड़ रहे थे। raising a proud cackle, एक गर्वित, proud cackle, चीख के साथ चीख लगा रहे थे, पुकार रहे थे। and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. And और all the morning, पूरी सुबह, the whole family, पूरी family had walked, वो वहाँ चली, about on the, उस बड़े प्लेट्यू पर जो मिड डे, डाउन द अपोजिट क्लिफ, सामने वाली चट्टान के बीच में थी। taunting him, taunting, taunt means comment, उस पर व्यंग करते रहे। with his cowardice, उसकी कायरता के लिए। the sun now ascending the sky, अब सूर्य आकाश में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उस लेज पर तेजी से चमक रहा था। दैट फेस द साउथ, जिसका जो दक्षिण की तरफ था, मीन्स जो लेज जो थी वो दक्षिण की ओर थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसने स्टेप आगे कदम बढ़ाए धीरे से। आउट टू द ब्रिंक, ब्रिंक से बाहर निकलने की, ब्रिंक की ओर, किनारे की ओर ऑफ द लेज, लेज के। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और स्टैंडिंग ऑन हिज वन लेग, अपनी एक पैर पर, वो अपने एक पैर पर खड़ा हुआ था और दूसरा पैर उसने छिपाया हुआ था अंडर हिज विंग, अपने पंख में, पंख के नीचे। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, उसने अपनी एक आंख बंद की और फिर दूसरी। एंड प्रोटेंटेड टू बी फॉलिंग asleep, और उसने बहाना बनाया टू बी फॉलिंग asleep, के वो अब सो रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, मीन्स उसके पेरेंट्स, भाई बहन ने। ही saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. ही saw, उसने देखा उसके दो भाई
और उसकी सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू पर लेटे हुए थे, डॉजिंग ऊँग रहे थे, विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, जिन्होंने अपने हेड को अपने गर्दन के नीचे छिपा लिया था। हिज फादर वॉज प्रीनिंग उसका जो फादर था वॉज प्रीनिंग मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स को संवारने की एक कला का प्रयास कर रहा था। मीन्स हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसकी जो सफ़ेद बैक थी, पीठ थी, उसके जो पंख थे वहाँ पर उन्हें प्रीन कर रहा था, उन्हें ठीक कर रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मदर उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी हुई थी, ऑन अ लिटिल हाई, कुछ थोड़ी सी ऊंचाई पर, हम्प जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, ऑन द प्लेट्यू पर, पठार पर। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी वाइट सफ़ेद ब्रेस्ट जो छाती थी थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की ओर धकेल रही थी, लग रही थी। नाउ एंड अगेन, बार बार, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट and then scraped each side of her beak on the rock. Now and again, बार बार she tore, वो फाड़ती फिश की एक पीस को, that lay at her feet, जो उसके पैरों में पड़ी थी, and then, और फिर scraped, उसने रगड़ा, each side of her beak, अपनी बीक की हर दोनों साइड को, on the rock पर। The sight of the food maddened him, जो फूड का नज़ारा था, दृश्य था, उसे पागल कर रहा था, उसने उसे पागल किया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वो काफ़ी पसंद करता था उस तरह से फूड को टीयर करना, फाड़ना। स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, स्क्रैपिंग रगड़ रहा था अपनी बीक को, नाउ एंड अगेन बार बार, टू वेट इट, वेट मीन्स टू शार्पन, तेज़ करने के लिए, अपनी चोंच को तेज़ करने के लिए वो रगड़ रहा था अपनी बीक। गा गा गा, ही क्राइड begging her to bring him some food, वो चिल्लाया, begging her, उसने अपनी मदर से मांगा, to bring him some food, कि वो कुछ उसे फूड ला कर दे। she screamed back derisively, वो उसकी ओर चिल्लाई, derisively उपहास पूर्वक, in a manner showing someone, इस तरह से कि उपहास लगे, उपहास के रूप में उस पर चिल्लाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो उसे बार बार बुलाता रहा, प्लेंटिवली, सैडली, उदासी से। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ एक मिनट बाद, ही अटर्ड, वो बोला, अ जॉयफुल, यानी वो चिल्लाया, एक जॉयफुल, खुशी पूर्ण एक स्क्रीम, चीख उसने लगाई। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी मदर ने फिश का एक टुकड़ा पिकअप किया, उठाया, and was flying across to him, और उसकी ओर उस टुकड़े के साथ उड़ रही थी। He leaned out. Lean means झुका, वह झुका, बाहर की ओर झुका। He leaned out eagerly, बड़ी उत्सुकता से, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने फीट से, पैरों से रॉक पर टैप किया, थपथपाया, जो पैर थे वो अपने उस रॉक पर मारे। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर, कोशिश कर रहा था उसके नज़दीक आने की। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो वहाँ से उड़ी। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, शी हॉल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वो ठीक सामने थी, उसकी मदर उसके, शी हॉल्टेड, शी स्टॉप्ड, हॉल्टेड मीन्स स्टॉप्ड, वो वहाँ रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, उसके विंग्स मोशनलेस हो गए, गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश, फिश का पीस, इन हर बीक, उसकी जो बीक में था, उसकी चोंच में था, ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, वो उस यंग सीगल की पहुँच में था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, वो उसने कुछ एक क्षण इंतजार किया, इन सरप्राइज, हैरानी में। वॉन्डरिंग, वो हैरान था, वाई शी डिड नॉट कम नियर, वह उसके नज़दीक क्यों नहीं आई। एंड देन, और फिर मैडन्ड बाय हंगर, अब भूख के कारण पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने जंप किया फिश पर। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस,
बड़ी तेज स्क्रीम के साथ ही फेल आउटवर्ड्स, वह बाहर की ओर गिरा, एंड डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, इनटू स्पेस, खाली जगह में। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, सीज्ड मीन्स जकड़ लेना, तब एक डेमोनिक शैतान रूपी यानी मीन्स भयानक टेरर, डर ने उसे जकड़ लिया, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय बिल्कुल थम सा गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सका, बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन यह केवल 1 मिनट के लिए रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले क्षण ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स, अपने विंग्स को स्प्रेड आउटवर्ड्स, कि उसने अपने विंग्स को बाहर की ओर स्प्रेड कर लिया, फैला लिया। The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. फिर हवा उसके छाती के पंखों से टकराई, तब उसके पेट के नीचे और फिर उसके पंखों से। He could feel the tips of his wings cutting through the air. वह अपने पंखों के सिरे, टिप्स को हवा को काटते महसूस कर सकता था। He was not falling headlong now. वह अब एकदम सीधे नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. वह उड़ रहा था, soaring, flying. वह नीचे की ओर और बाहर की ओर उड़ रहा था। He was no longer afraid, अब वो डर नहीं रहा था। He just felt a bit dizzy, uncomfortable. वह केवल थोड़ा सा भौचक्का महसूस कर रहा था, हैरानी महसूस कर रहा था, अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. तब उसने अपने पंखों को एक बार फिर फड़फड़ाया, and he soared upwards, और ऊपर की ओर उड़ गया। His mother swooped past him. उसकी मदर ने खुशी से चीख लगाई। Swooped past him. Swooped means जंप भी होता है, जंप, फ्लू भी होता है। उसके पास से उड़ते हुए निकल गई। Then his father flew over him screaming. तब उसका फादर चिल्लाते हुए उसके पास से उड़ गया। He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. He saw, उसने देखा उसके 2 भाई और बहन flying around him, उसके चारों ओर उड़ रहे थे। curveting, leaping, जंप करते हुए उड़ रहे थे। banking, flying with one wing higher than the other, थोड़ा सा तिरछा वो उड़ा। soaring, ऊंचा उड़ा, and diving, और फिर नीचे की ओर आया। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly. तब वह बिल्कुल पूर्णतः भूल गया that he had not always been able to fly, कि वो कभी उड़ने में असमर्थ भी था। and commanded himself, और उसने अपने आप को commanded किया to dive करने के लिए, and soar, ऊपर उड़ने के लिए, कर्व, थोड़ा तिरछा होने के लिए, shrieking shrilly, और काफ़ी तीव्र वो चिल्लाया। He was near the sea now, अब वो समुद्र के नज़दीक था। Flying straight over it, ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, स्ट्रेट, काफ़ी सीधे उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट ओवर द ओशन, सागर के ऊपर था। He saw a vast green sea beneath him, उसने अपने नीचे एक बड़ा हरा सागर देखा। With little breezes moving over it, जिस पर कुछ छोटी छोटी लहरें हिल रही थी। Breezes here means लहरें। And he turned his beak sideways and cawed amusedly, और उसने अपनी चोंच को एक तरफ हिलाया और खुशी से काएं काएं करने लगा। Amusedly, happily.
His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके parents, उसके brothers और sister had landed on this, वो पहले ही landed on this green, उस green flooring पर, means flooring फर्श, लेकिन यहाँ समुद्र उस सागर पर पहले ही ahead of उसके सामने लैंड कर चुके थे. They were beckoning to him. Beckoning means calling. वे उसे बुला रहे थे. Calling him shrilly, बड़ी तीव्र आवाज़ में उसे बुला रहे थे. He dropped his legs. उसने अपनी legs को सीधे किया. Dropped नीचे करना यानी सीधे करना. To stand on the green sea. उस green sea पर खड़े होने के लिए. His legs sank into it. उसकी legs जो हैं वो डूबी. He screamed with fright. वो डर के साथ चिल्लाया. And attempted to rise, और दोबारा उठने के लिए कोशिश की. Again flapping his wings, अपने wings को फड़फड़ाते हुए. But he was tired and weak with hunger. लेकिन वो थक चुका था और weak कमज़ोर था with hunger, भूख से. And he could not rise. वो उठ नहीं सका. Exhausted. Exhausted means वो काफ़ी थक चुका था. By the strange exercise, इस जो अजीब strange जो व्यायाम था उसके कारण his feet sank into the green sea. sank वैसे डूबना, लेकिन यहाँ धंसना. उसके पैर जो थे वो ग्रीन सागर में धंस गए. and then his belly touched it. और फिर उसकी belly means stomach, पेट ने उस सागर को छुआ. and he sank no further, और वो आगे नहीं डूबा. he was floating on it, वह उस पर तैर रहा था. and around him his family was screaming, और उसके चारों ओर उसकी फैमिली चिल्ला रही थी. praising him, उसकी प्रशंसा कर रही थी. and their beaks were offering in scraps of dogfish, और उनकी beaks, उनकी चोंच उसे ऑफर कर रही थी कुछ dogfish के कुछ टुकड़े. scraps means टुकड़े. he had made his first flight, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. Students, this was the explanation of this chapter. His first flight. In the next video we will study the second part. Till then, thank you. Have a nice day.